میرے بھائی میں اس دن آیا تھا, کشتی نکل گئی لیکن آنے میں دیر ہو گئی, میرے بھائی میں سمندر میں ڈال دیا, شاید وہ ایک نہ ایک دن اللہ پر بھروسہ ہے تجھے ہی ملے گی, کسی اور کو نہیں ملے گی. شاید وہ کب ملے, یہ امانت میں دیری ہو گئی مجھے معاف کر, یہ تیرا قرضہ لے لے. وہ چٹھی وہ پیسے لا کر دیا, کہا جس دن تو بھیجا تھا اللہ کشتی سے پہلے تیری امانت میرے تک یہ امانت پہنچا دی. یہ حدیث میں کتنی عبرت ہے معلوم. اگر کوئی دینے کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ دلاتا, اللہ دینے کا انتظام کراتا. اگر تمہیں ڈبانے کا ارادہ کرے تم نہ کان گاڑنا وہاں گاڑ کو اللہ بٹھا ڈالتا. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ. محترم دینی اور اسلامی بھائیوں اور پردہ نشی عزت مآب میری ماں اور بہنوں, آج بروز سنیچر ورنگل اور کریم نگر کے قریب میں ہے, تلنگانہ اسٹیٹ میں, اس انم کونڈا ضلع کی جانب سے ہونے والے اس عظیم الشان پروگرام میں جو اپل اور کاملا پور کے اس منڈل میں شادی حال میں ہونے والے اس پروگرام میں آج مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر بیان کرنا ہے وہ ہے ہمارے آپسی معاملات اور ہمارا سماج, یعنی ہمارا لین دین اس معاشرے میں جو ہم زندہ ہیں, جو ایک دوسرے کے ساتھ لیوا دیوی کرتے ہیں, ہمارا آپسی معاملہ کیسا ہونا چاہیے اور ہمارا سماج کیسا ہونا چاہیے اسلامی نقطہ نظر سے. اس ٹاپک پر مجھے آج آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کرنا ہے. محترم بھائیوں, میں سب سے پہلے اللہ کا شکریہ ادا کروں گا جس اللہ رب العزت نے آج اس پروگرام میں مجھے آپ کے سامنے بیان کرنے کا موقع دیا, اور اس کے بعد یہاں کے جماعت اور جمعیت کے ذمہ داران کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے اس خوبصورت پروگرام کو ترتیب دیا. اللہ تعالی ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دینی خدمات کو قبول کرتے ہوئے دین پر ثابت قدم رہ کر دین پر عمل پیرا رہنے اور دین کی دعوت کا کام کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. آج آپسی معاملات کے اوپر میں بات کرنے کھڑا ہوں. آپسی معاملات کا تو کاروبار کرنا, شادی بیاہ کر کے لین دین کرنا, یا امانت سے ایک دوسرے کو لیوا دیوی کرنا, ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے رہنا چاہیے. آج نماز پر, روزے پر, حج پر, زکات پر بات نہیں ہوگی, آج ہمارے آپسی معاملات کے اوپر بات ہوگی. قرآن مجید میں سب سے بڑی آیت نہ نماز کے بارے میں ہے, نہ روزے کے بارے میں, نہ حج کے بارے میں, نہ زکات کے بارے میں. سب سے بڑی آیت جسے آیت دین کہتے ہیں, آیت دین معاملات کے بارے میں ہے سب سے بڑی آیت, سورہ بقرہ 282 نمبر کی آیت, سب سے بڑی آیت. للہ ما فی السماوات وما فی الارض آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون. یہ للہ ما فی السماوات والارض سے پہلے کی جو آیت ہے سب سے بڑی آیت, لین دین کی آیت.
अल्लाह कहता है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा तदायनतुम, जब तुम किसी के साथ लेवा देवी करो, इला अजलिन मुसम्मा, एक वक्त मुकर्ररा तक, फक्तुबूहु, तो उसे लिख लिया करो। अल्लाह बोल रहा लिख लिया करो। इनो हमारे भाईजान कहते हो ना, भाईजान 50,000 हो ना, ले लग जाओ। हमारे चिच्चा 1 लाख रुपए है ना, ले लग जाओ। हमारा भाई, बड़ा भाई 80,000 हो ना, क्या की जरूरत पड़ गई, ले लग जाओ। कहते दिन के वास्ते 2 महीने, 6 महीने, 1 साल, ले लग जाओ। अरे भाई क्या लिख लेना, भरोसा है तुम्हारा, ले लग जाओ। अगर उन्हें नहीं दे तो पलट लिया, सग्गा चिच्चा, सग्गा बड़ा भाई, नहीं रे मैं नहीं देता, तू कबरे दिया, क्या है तेरे पास, गवाह बता, देखेंगे। कहां जाना इन्हें, 100 बोलना भी एक लिखना भी एक, लिख लिया करो, आपसी मामलात खराब नहीं होते। अल्लाह के नबी ने बयान फरमाया, चाहे तुम्हारे खूनी रिश्तेदार क्यों ना रहे, हर मामलादारी लिख लिया करो। गवाहों के साथ आप लिख लो, जो गवाही विटनेस, उनकी भी सिग्नेचर ले लो, हो सके तो वीडियो बना लो, जो लेवा देवी कर रही वीडियो बना लो, ताकि कल उन्हें अपनी बात से ना फिर सके। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात हमारे सामने क्यों बयान फरमाई? इसलिए बयान फरमाई कि इंसानों के मामलात सुधरे रहें, उनके आपसी मामलात ना बिगड़े, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, जब इंसान किसी का पैसा डुबाकर खा लेता है, नाहक उसका पैसा धोखा देके निगल लेता है, तो वो हराम का पैसा होता है। किसी को धोखा दे देना, किसी का माल चोरी कर लेना, और किसी को धोखा देके पैसे लूट लेना, और किसी के न लिखने का फायदा उठाकर उसके पैसे डुबाकर टोपी डाल देना, हराम का है, हराम का खाता है। अल्लाह के नबी बयान फरमाते हैं, या अय्युहन्नास, ऐ ईमान वालो, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बलु इल्ला तय्यिबा, अल्लाह पाक है और पाक चीजों के सिवा कोई चीज पसंद नहीं करता। ऐ मुसलमानों, ऐ मोमिनों, इनका उनका मुंह मार को पैसे नक्को खाओ, इनके उनके कोंपे डुबा को धोखा नक्को दो, हलाल तरीके से खाओ, हलाल तरीके से कमाओ, दूसरे को धोखा देखो, पैसे नक्को लूटो। अल्लाह ताला ये तंबीह कर रहा है, अगर तुम हराम तरीके से झूठ बोलकर खाओगे, धोखा देकर खाओगे, किसी के माल को हड़प करके निगल लोगे, तो अल्लाह ताला क्या कहेगा, व इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, जो हुक्म अल्लाह ने अंबिया को दिया वही हुक्म अल्लाह ताला मोमिनों को भी दे रहा है। अंबिया को अल्लाह ने क्या हुक्म दिया? अल्लाह ने अंबिया को कहा, या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा इन्नी बिमा तअमलून अलीम। अल्लाह ने कहा कि ऐ मेरे रसूलों, पाक चीजें खाकर नेक अमल करो, क्योंकि अल्लाह वो सब जानता है जो कुछ तुम करते हो। ये आयतें पढ़ने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह बकरा की और एक आयत पढ़े, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिनत तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, ऐ ईमान वालो, जो अल्लाह ने जमीन में चीजें पैदा कर रखी है, इनमें से 5 चीजों को तुम खाया करो। अब 5 चीजें खाना मतलब क्या? किसी को धोखा नहीं देना, किसी के पैसे हड़प नहीं करना, हराम तरीके से नहीं खाना, और किसी इंसान के मामलादारी में गद्दारी नहीं करना। क्योंकि अल्लाह के नबी ने इन आयतों को पढ़ने के बाद आपने बयान फरमाया, सुम्मा ज़कर अर्रजुल युतीलु सफरा अशअसा अगबरा यमुद्दु यदैहि इला समा, या रब्बी
एक मुसाफिर है जो सफर की हालत में परेशान है, बाल पर आगंदा है, आसमान की जानिब हाथ उठाए कहता है ऐ मेरे रब, ऐ मेरे रब। अल्लाह कहता है कि मतअमहु हरामुन व मलबसहु हरामुन व मशरबहु हरामुन व गुज़िया बिल हराम अन्ना युस्तजाब लक। ऐ मेरे बंदे, तेरा खाना हराम का, तेरा पीना हराम का, तेरा पहनना हराम का, तेरा ओढ़ना हराम का, तो ही बता मैं तेरी दुआ कैसे कबूल करूं। जबकि अल्लाह 3 आदमियों की दुआ कभी रद्द नहीं करता, मजलूम की बद्दुआ और बाप की दुआ बच्चों के हक में और मुसाफिर की दुआ अल्लाह कभी रद्द नहीं करता। लेकिन अल्लाह कहता है मामलादारी में अगर गलत इंसान करके हराम कमाकर सफर में भी हाथ उठाए अल्लाह से मदद मांगेगा, अल्लाह कहता है मेरे बंदे मैं तेरी दुआ हरगिज हरगिज कबूल नहीं करूंगा। अल्लाहु अकबर। और मामलादारी में हमारा साफ रहना, गलत नहीं होना। नंबर 2, नाप तोल करने में हम लोग डंडी मारते हैं। तराजू में, जो तराजू में तोलने के अनाज का क्या बोलते हैं उसे, कुंडा, पुट्टी या जो भी तोलने का अनाज का रहता, उसमें नीचे 1 किलो का, आधा किलो का, पाव किलो का मैग्नेट चिपका डालते। सामने वाले ग्राहक को नहीं दिखता, नीचे से मैग्नेट लगा डाला और उसे ऐसा लग रहा कि भाई 50 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा है, इन्हें 100 ग्राम एक्स्ट्रा दे रहा, जबकि 1 किलो का मैग्नेट नीचे चिपका डाला। अल्लाह कुरान में कहता है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, बर्बादी है नापतोल में कमी पेशी करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा इज़्तालू अलन नास यस्तौफून, जब ये लोग नाप तोल कर लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा तोल कर लेते हैं। वो इज़ा कालूहुम औ वज़नूहुम युखसिरून, लेकिन जब तोल कर देने की बारी आती है तो कम कम तोल कर देते हैं। लेना है तो ज्यादा ज्यादा लेती, देना है तो कम कम तोल कर देती। और इन्हें क्या समझ रहा, मेरे पास 100 ग्राम बच गया, 1 किलो डंडी मार लिया, मैं खूब फायदा उठा लिया। ऐ अल्लाह के बंदे, अल्लाह तेरी कमाई की बरकत सत्यानाश करेगा। उसके पास मुंह मार को 10 रुपए तू खाया, अल्लाह तेरे 1000 रुपए काम बर्बाद करना हुआ बर्बाद करके छोड़ डालता। क़यामत के मैदान में इंसान के मामलात अच्छे न होने की वजह से उसे जहन्नम में पटक दिया जाएगा। मशहूर हदीस, अल्लाह के नबी कहते अतदरून अमल मुफलिस, ऐ मेरे उम्मतियों, क्या तुम्हें मालूम है कि मुफलिस किसे कहते हैं? साहबा ने कहा अल मुफलिसु मन फीना मल्ला दिरहम वला मता, जिसके पास दीनार नहीं, दिरहम नहीं, खाने पैसा नहीं, रहने घर नहीं, उन्हें मुफलिस। आपने कहा कि इन्नल मुफलिस मिन उम्मती, मेरी उम्मत का मुफलिस वो है याती यौमल क़ियामति बिसलाती व सियामी व ज़काती। ये एक मुफलिस ऐसा है जो नमाज के पहाड़, रोजों के पहाड़, ज़कात के पहाड़ लेकर क़यामत में आएगा, लेकिन लोगों के साथ मामलादारी खराब रहेगा। खदशतम हाजा व खज़फ़ हाजा व अकला माल हाजा व ज़रब हाजा व सफ़क दम हाजा, किसी को मारा होगा, किसी की इज्जत लूटा होगा, किसी का मर्डर किया होगा और किसी को जलील किया होगा। सारे मजलूमीन आकर बोलेंगे अल्लाह मेरी इज्जत का बदला दिला, अल्लाह मेरे पास कर्जा लेकर पैसे डुबाया था, मेरे पैसे दिला, अल्लाह मेरा मर्डर कराया था, मेरे खून का बदला दिला। या अल्लाह शादी करने तू तो मंगनी कर को, मेरी इज्जत लूट को, जिना कर को, मुझे हामिला कर को धोखा दिया, अल्लाह मेरी इज्जत का बदला दिला। अल्लाह नेकियां तोल तोल को देते देते पूरे पहाड़ा के नेकियां खाली, मजलूमीन खाली नहीं होंगे, मजलूमीन के गुनाह सिर पर डालेगा। आया था नेकियों के पहाड़ों के साथ, लेकिन अब बन जाएंगे गुनाहों के पहाड़। अल्लाह से कहेगा अल्लाह मुझे माफ कर, अल्लाह कहेगा अगर मेरे मामले में कमी पेशी करता मैं माफ करता, मेरे बंदों के मामले में कमी पेशी किया, जब तक वो माफ नहीं करेंगे मैं भी माफ नहीं करूंगा। जहन्नम में अल्लाह उसे उठाकर जहन्नम में पटकेगा। ये कौन होगा?
लोगों के साथ आपसी मामलात खराब रखने वाला। अल्लाह अकबर। ये खरियों के बस्तियों का माहौल है। यहां पर हर किसी की जमीन होती है। हमारे अब्बा की जमीन, हमारे चिच्चा की जमीन, हमारे बड़े अब्बा की जमीन, हमारे फुप्पो की जमीन, हमारे खाला की जमीन, ये मेरे बड़े भाई की जमीन, ये मेरे छोटे भाई की जमीन, इतने एकड़ जमीन, इतने सेंट्स जमीन। लेकिन जैसे ही बाप मर गया, दूसरे चिच्चा बड़े बाप ने उसकी जमीन पर नाहक कब्जा कर लिया, जमीनों को हड़प कर खा लिए या उस जमीन को अपने नाम अग्रीमेंट कर लिए। भाभी को पढ़ने नहीं आता, ले ले जगह अंगूठा लगा डाले और अपने नाम पर रजिस्टर कर लिए। अल्लाह के नबी कहते हैं, हजरत मास बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन की जानिब भेज रहे हैं। आप अलैहिस्सलाम नसीहत करते कहते हैं, या मास, ऐ मास, कान खोल कर सुन लेना, इत्तकी दावतल मजलूम, मजलूम की बद्दुआ से बचना, फ़इन्नहु लैसा बैनहु व बैन अल्लाहि हिजाब, इसलिए कि मजलूम की बद्दुआ और अल्लाह के दरमियान कोई आड़ नहीं रहेगा, कोई पर्दा नहीं रहेगा। अब चाची पूछ रही, बेवा खाला पूछ रही, भान पूछ रही, भैया ये मेरे शोहर का जमीन था, धोखे से रजिस्टर कर लिया, मेरे बच्चों का हिस्सा है, दे भैया। देता नहीं, कब देता नहीं, क्या कर लेती, जा। नाहक कब्जा करने बैठ गया और जुल्म कर रहा। अल्लाह के नबी कहते, मजलूम की बद्दुआ से बचो। मन अखज़ा शिब्रम मिनल अर्ज़ी जुल्मा, जो एक बालिश्त जमीन जुल्म से किसी के नाहक अपने कब्जे में कर लेगा, युतव्विक़ुहु फी उनक़िही मिन सब'i अर्ज़िन यौमल क़ियामह, रवाहुल बुखारी। अल्लाह के नबी ने कहा, अगर एक बालिश्त जमीन किसी की अपने कब्जे में नाहक कर लोगे, अल्लाह 7 जमीनों का हार बनाकर गले में कयामत के दिन डाल देगा। 7 जमीनों का हार, एक मन मिट्टी थैला बना पीठ पर रखे नीचे बैठ जाता इन्हें, खाली एक मन मट्ठी। ऐसे एक जमीन नहीं, 7 जमीनों को अल्लाह गले में टंगा डालता कयामत के दिन। मजलूम की बद्दुआ से बचो। बहुत सारे हस्बैंड अपनी बीवी को, अपनी जोरू को पकड़ ले को जानवरों को मारे सरका मारती। मैं बोले सरका सुनना नहीं कतो दबा दब धड़ा धड़, क्या इन्हें बड़ा गंदगली कतो। अरे दीवाने, तू मुच्छा रखा सो बड़ा मरद बना रहा, तो तेरे बराबर के मुच्छा रखे सो मरद बाने के पहलवान के साथ कुश्ती लड़ जाको, तू एक दिया उन्हें फलटक दो देता। वो बिचारी जोरू के सामने दिखा ले खड़ जाता, ज्यादा रोक को दे तू देखता था, और जोरू पकड़े मारता, लकड़ी मिली लकड़ी लेक मारता, झाड़ू मिले झाड़ू लेक मारता, कभी हाथा से मारता, कभी लाता से मारता। क्या इन्हें बोले सरका सुनना, क्या भाई गलती क्या करी, खाने में नमक ज्यादा हुआ, वत्तच ज्यादा क्या भी नहीं, सालने में मसाला ज्यादा हुआ, सालने का खोटरा उठा पटक डालता। ये क्या सीखे तेरी अम्मा, ये क्या सीखले कैसे तेरे बाबा घर से, तेरी अम्मा ऐसा क्या, तेरा बाबा ऐसा। इसकी दीवाने खाने में नमक क्या की परपाट से पड़ा रहूंगा, अगर ज्यादा है छोड़ रोटी खा ले, नहीं नमक कम है लाले नमक डाल ले, चमचा ले खला ले खा ले। अब अत्ते को खानदान को गाले शुरू, बकरे मारना शुरू। अल्लाह अकबर। इन्हें क्या समझता, मेरी जोरू फटक नहीं मारती, उन्हें नहीं मारी, क्या हुआ, अंदर जाकर नमाज के मुसल्ले को बैठ हाथा उठा बद्दुआ करती, या अल्लाह मोटे मोटे हाथा से, बड़े बड़े पावा से लाता झड़क मारा, हाथा से मार रहा, इसके हाथा को इसके पैर लखवा मार डाल, अल्लाह का दुआ करती। उसकी बद्दुआ आज करे सबा, एक हाथ भी गिर जाता, एक पांव भी गिर जाता, यहां तक के उठे तो भी बीवी होना, बैठे तो बीवी होना। अल्लाह अकबर। बीवी फैटा को नहीं मारे, क्या हुआ, बद्दुआ करी, न जमीन में चलने के लायक रहता, न आसमान में अल्लाह को मुंह दिखाने के लायक रहता।
किसी की बदुआ नहीं लेना, मामलादारी अच्छा रखना, रहम के साथ पेश आना। अल्लाह बोलता इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा, ऐ मेरे बंदो अगर तुम जमीन वालों पर रहम करोगे, वो अर्श वाला मेरा अल्लाह तुम पर रहम करेगा। रहम का मामला, नरमी का मामला, आजीजी का मामला, हंसते हंसते मुस्कुराते तुम्हारी लाइफ पार्टनर जी, उन्हें शरीक हयात तुम्हारी बीवी। अल्लाह के नबी कहते अगर तुम्हारी बीवी की कोई अदा नापसंद आए, उसके अंदर 9 खूबियां ही 9, उन 9 खूबियों को देखो, उस पर हाथ मत उठाओ। हाथ उठाने का स्टेज 4th स्टेज। पहला क्या? बात छोड़ना। बीवी नहीं सुधर रही, बात छोड़ना। सुधर जाती, नहीं सुधर रही, उसके हाथ का खाना खाना छोड़ना, उसे बहुत तकलीफ होती। सुधर जाती, तब भी नहीं सुधर रही, एक खींच बेडरूम में उन्हें वहां सो रही तो तुम्हें यहां सोना, बिस्तर अलग करना, तब सुधर जाती। अगर नहीं सुधर रही तो मारना। क्या लेक मारना? मिसवाक लेक मारना। मिसवाक कितनी रहती? पेन की होती रहती। बड़ा डंडा लेको नहीं मारना, मिसवाक लेको हल्की मार मारना, टिक 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 के सर का मारना। हदीस में उस कुरान की आयत की तफसीर में सहाबी रसूल मुफस्सिर कुरान हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान करते हैं मिसवाक से मारना। हम डंडा उठा लेते पहले, धड़ाधड़ WWF की फाइटिंग शुरू, अल्लाह अकबर। आज मार रहा, हाथा में ताकत है कि मार रहा। सबा अल्लाह ताला सुबह की नमाज से पहले अगर ठनकाने के मौसम में भेजे में एक टुकड़े में कई हजारों के रगा रहती रगा, अगर उस रग में से एक रग को अल्लाह अगर बोला तो काम करना बंद कर, तो पूरा एक साइड का बॉडी लखवे में बदल जाता, फालिज में। सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी रसूल, अशरे मुबशरा सहाबा में से एक सहाबी रसूल सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाहु अन्हु। इनके जमाने में एक उर्वा बिनते उवैस नाम की औरत ने कहा कि यह जमीन मेरी है, सईद की नहीं है। हजरत सईद बिन ज़ैद की जमीन थी वो। सईद बिन ज़ैद ने कहा मैंने अपने कानों से अल्लाह के नबी की हदीस सुनी है, मन अखज़ शिब्रन मिनल अर्ज़ ज़ुल्मा, जो भी एक बालिश जमीन जुल्म से खाएगा अल्लाह 7 जमीनों का हार गले में डालेगा। इतनी बड़ी हदीस मैं नबी से सुना हो, मैं झूठा दावा क्यों करूं, ये मेरी जमीन है। फिर वो बद्दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा इन कानत काज़िबतुन फ़अइम्मा बसरहा, या अल्लाह अगर ये उर्वा झूठा दावा कर रही है, झूठ बोल रही है, मेरी बद्दुआ है तू इसे अंधी बना दे। अशरे मुबशरा सहाबी बद्दुआ करे, अल्लाह उस उर्वा को अंधी बना दिया, उसकी आंखें की बसारत अल्लाह निकाल लिया, अंधी बन गई वो, और उसका घर उसका खबर बन गई, वो अपने घर में मर गई। किसी की बद्दुआ नहीं लेना, मामलादारी बराबर रख लेना। एक दूसरे का लेवा देवी करो तो कब देता भाई पूछना, लिख लेना पहले। मैं 1 महीने के बाद 1 महीना करेक्ट डेट लिख ले तो सही सिग्नेचर कर लेना। हो सके 2 गवाहों को ला लेना, और उसके बाद वो गवाह 2 मरदबाने रहना। अगर 2 मरदबाने नहीं मिल रहे, हर मरदबाने के बदले 2 बैकान को लेना। अल्लाह कुरान में बोल रहा है इस बात है, 2 बैकान लेना। एक मरदबाने की गवाह 2 औरतों के बराबर, एक मर्द है 2 औरतें हैं चल जाएगा, नहीं दोनों क्या है, मर्द नहीं है, 4 औरतों को गवाह बनाना, 4 औरतों को गवाह बनाना। फिर अल्लाह के नबी ने कहा खरस की मुद्दत जब तय की गई है, चाहे वक्त आने पर काहिली सुस्ती नहीं करना, टाल मटोल नहीं करना, ले ले जा उसके पैसे उसे दे डालना। कुरान में सबसे बड़ी तंबीह आयत दैन के बारे में है। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में जब भी मरकर कोई जनाजा आता था तो आप अलैहिस्सलाम ये नहीं पूछते थे इन्हें हज करया नहीं करया, रोजे रखा नहीं रखा, इन्हें क्या करया क्या नहीं करया, लेकिन ये जरूर पूछते थे
इसके ऊपर कर्जा है क्या? हाँ है। अल्लाह के नबी बोलते हैं मैं नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता, तुम्हें पढ़ लो। एक बार एक जनाजा आया, नबी अलैहिस्सलाम ने पूछा क्या इसके ऊपर कर्जा है? हाँ इसके ऊपर कर्जा है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कहा मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा सकता। हजरत अबू कतादा रज़ियल्लाहु अन्हु कहने लगे अरे अल्लाह के नबी मैं इसका कर्जा अदा कर दूं, मैं जिम्मेदारी ले दूं। तब नबी अलैहिस्सलाम उसकी नमाज जनाजा पढ़ाए। या अगर कोई कर्जा अदा करने की जिम्मेदारी ना लेता, नबी अपनी तरफ से कर्जा अदा करते। किसे? मैयत को, रखले को, लाश को, रखले को, जनाजे को, रखले को। नबी सवाल कर रहे हैं कर्जा है, नहीं पढ़ाता। अगर अदा करने वाले कोई है पढ़ाऊंगा, वरना आप खुद पढ़ ले, मैं नहीं पढ़ाता। अल्लाह के नबी कहते एक शहीद अल्लाह के राह में जिहाद करते गर्दन कटाते शहीद होने वाले को भी अल्लाह तबारक व तआला बगैर हिसाब किताब के जन्नत देगा, जन्नत की कई हूरों से निकाह कराएगा। लेकिन अगर शहीद के सर पर भी कर्जे का मामलादारी है, लोगों की मामलादारी में शहीद भी कमी पेशी है, अल्लाह उसे भी जन्नत उस वक्त तक नहीं देगा जब तक वो अपने सर के ऊपर का कर्जा बराबर नहीं कर लेगा। इतना नाजुक मसला कर्जदारी। आज हमें क्या करती, जोरू की डिलीवरी आ गई तो फौरन हमें जाको आजिजी करती, भाई कैसा तो घर को 50,000 दे भाई, अगले महीने में दे डाल तू भाई। मैं क्या कि नॉर्मल डिलीवरी होती ही समझा था। डॉक्टर हम बोले सिजरिन डिलीवरी होती 20,000 नहीं काम आते, 50,000 होना। अचानक बोलो अब जल्दी इंतजाम करा, तेरी बीवी और बच्चा बचती, अगर नहीं इंतजाम करे तेरी बीवी भी मरती, तेरा बच्चा भी मरता। भाई मेरी जोरू की जान खतरे में है, भाई मेरे बच्चे की जान कैसा तो कर को दे भाई, अल्लाह के वास्ते दे। रो रो को हंते में पानी का एक पूछता, रहम खा को देने वाला दे डालता, लेक जा भाई अगले महीने दे गए, लेक जा। अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवरी हो गई, आसानी से हो गई, बच्चा भी बच गया, बीवी भी बच गई। अगला महीना आ गया, कर्जा देना, फोन स्विच ऑफ कर ले, घर में दबा ले, बैठ जाता, बेडरूम में घुसले बैठ जाता, दरवाजे का को पूछता उन्हें कहां है, कहां है तुम्हारे अब्बा, कहां है? इल्लुल्लो मनायना ले दो एकड़े पोइना रुपोंडी, बाहर से बोगो भरा डालती। यहां तक के देख 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 को एक दिन घर के बाहर जब ले बैठ जाता उन्हें, कब तक नहीं आता देखेंगे। उसकी बीवी जी बैठ गया जी, हाँ जी नहीं भूख बैठे सर का, घर के बाहर ही बैठ गया जी। जब लग तुम ना बच्चे को बोलता हमारे बाबा घर में नहीं करना, बोल जा रे हमारे बाबा बेडरूम में बैठ को बोल रही घर में नहीं करते, बच्चा क्या बोलेगा? और लेटेस्ट टम्पो मगरमच्छ के आंसुआ आजिजी कर को, रो रो को, नाटक कर को दे भाई दे तू भाई तो लेता, लेकिन देना का स्टम्पो क्या तो मस्जिद में पूछना, हाँ भाई 1 महीना बोला, 1.5-2 महीना अभी तक दिया नहीं ना। क्या रे तू पूछ रहा सो मुझे, क्या कभी पैसे देखा नहीं? कहीं का तेरा है तो इसकी अस्सीना चढ़ाना शुरू, सीना तानना शुरू। किसके ऊपर सीना तान रहा, किसके ऊपर अस्तीना चढ़ा रहा? अरे उस आदमी के ऊपर जो कभी तेरे पर रहम खा को तेरी मदद करया, तेरी जोरू की जान जारी का तो रोस्टम को तेरी हेल्प करया, बगैर वड्डी के, बगैर बड्डी के, बगैर रिश्वत के, बगैर सूद के, हाथ बदल देख मदद करया, उसके ऊपर अस्तीना चढ़ा को, चीखा मार को, उससे का साथ झगड़ा कर रहा। अल्लाहू अकबर। एक बार तू भीख मंगया, ऐसे 10 बार भीख मंगने के काबिल अल्लाह तुझे बना डालता। एहसान का बदला एहसान से चुकाओ बोलता अल्लाह तबारक व तआला। और अल्लाह के नबी ने कहा मुद्लुल गनी जुल्मुन फइज़ा उतबा अहदुकुम अलैया अला मलिय्यिन फलयतबा। खर्जदार टाल मटोल नहीं करना, कर्जा अगर लिया पैसा है दे डालना, नहीं है एडजस्ट कर को वादे के मुताबिक उस टाइम पर अदा कर डालना, टाल मटोल हरगिज नहीं करना। मेरे दीनी भाइयों, वादे को टालना, अमानत में खियानत करना, ये किसकी अमानत है, किसकी निशानी है? मुनाफिक की निशानी। आयतुल मुनाफिक सलास, इज़ा वादा अखलफा व इज़ा उतमिना खाना व इज़ा हद्दसा कज़िबा। बात करे तो झूठ,
वादा करा तो खिलाफ, अमानत रखे तो खियानत। और कुरान में अल्लाह सूरह मुमिनून में कहता है वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, वो लोग जन्नत में जाने वाले, कामयाब होने वाले पक्के मोमिन जो अपने वादों को पूरा करते हैं और अपनी अमानत को अदा करते हैं। अमानत की हिफाजत करने वाले, वादे को पूरा करने वाले जन्नत में जाएंगे। अमानत में खियानत करने वाले, वादों को तोड़कर धोखा देने वाले जहन्नम में जाएंगे। मामिलादारी बराबर रखना। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, अल्लाह तुम्हारे वादों के बारे में क़यामत के दिन पूछेगा, वअऊफू बिल अहद इन्नल अहद कान मसऊला। बेशक जो वादे तुम दुनिया में करते हो, अल्लाह उन वादों के बराबर तुम्हें क़यामत के दिन सवाल करेगा, क्या किया तुमने अपने वादों का। और मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, एक आदमी बनी इस्राइल का एक भाई से कर्जा ले लेता है। बस्ती के किनारे, समंदर के किनारे बस्ती गया, कहा कि मेरे भाई मुझे कर्जा चाहिए। 1000 दिनार दे दिया उसने, कहा कि अगले महीने इसी डेट को मैं दूंगा। वो कर्जा देने वाला कहता मैं नहीं जानता तुझे, अरे मेरे भाई किसी को तू जामिन बना, मैं तुझे कर्जा दूंगा। वो कहने लगा कफा बिल्लाहि कफीला, मेरा जामिन मेरा अल्लाह ताला है। वो कहता है मेरे भाई किसी को गवाह बना। वो कहता है कफा बिल्लाहि शहीदा, मेरा गवाह मेरा अल्लाह ताला है। कफा बिल्लाहि कफीला, कफा बिल्लाहि शहीदा, मेरा जामिन मेरा अल्लाह, मेरा गवाह मेरा अल्लाह। उठा कर दे दिया, क्योंकि वो भी अल्लाह को मानने वाला। अगले महीने उस डेट को पैसे लेकर आया समंदर के किनारे जाकर अमानत अदा करने, लेकिन कश्ती निकल गई, कश्ती चली गई। एक लकड़ी लिया, उसमें सुराख किया और एक पर्ची लिखकर उसमें रखकर वो लकड़ी का बड्डा पकड़कर अल्लाह से दुआ करते कहता है समंदर के किनारे खड़े होकर। उसके अल्फाज नकल है हदीस में, सही बुखारी 2291 नंबर की हदीस है ये, 2291 नंबर की हदीस। और इमाम बुखारी ने इस हदीस को 11 जगह रिपीट सही बुखारी में 11 मरतबा इस हदीस को लाए। वो अल्लाह का बंदा उस लकड़ी के बड्डे को लेकर समंदर के किनारे खड़कर अल्लाह से दुआ करता है, मेरे अल्लाह, जब मैं उस भाई से कर्जा ले रहा था, उसने पूछा था जामिन बना, या अल्लाह मैंने तुझे जामिन बनाया था। उसने पूछा था गवाह ला, या अल्लाह मैंने तुझे गवाह बनाया था। आज तेरी गवाही में, तेरी जमानत में ये अमानत मैं समंदर में डालता हूं, तू अपनी जमानत से, अपनी हिफाजत से मेरे कर्जे को मेरे भाई तक पहुंचा दे। क्या भरोसा था होगा उस अल्लाह के बंदे का अल्लाह पर, समंदर में डाल दिया उसने। और वो भाई वहां जब ले खड़ा, आज का डेट मेरा भाई पैसे लाने का, देखा नहीं आया, लेकिन कश्ती से पहले लकड़ी का बड्डा आ गया। लकड़ी को देखा कि इतनी बड़ी लकड़ी अगर मैं फोड़ूंगा, सुखाऊंगा, जलाने के काम आएगी। ले गया घर, फोड़ा, अंदर से 1000 दिनार की चमड़े की पोटली, उसके अंदर से चिट्ठी पढ़ा, खुश हो गया। अब मोबाइल का जमाना तो नहीं आता कि हाँ भाई तुम्हारा अमाउंट डिलीवरी पहुंच गया, कैश मुझे मिल गया, मोबाइल का जमाना तो नहीं, उसे मालूम कैसा होना। अगले महीने फिर पैसे लेकर आया, उन्हें बोला मेरे भाई मैं उस दिन आया था, कश्ती निकल गई, लेकिन आने में देर हो गई, मेरे भाई मैं समंदर में डाल दिया। शायद वो एक ना एक दिन अल्लाह पर भरोसा है, तुझे ही मिलेगी, किसी और को नहीं मिलेगी। शायद वो कब मिले, ये अमानत में देरी हो गई, मुझे माफ कर, ये तेरा कर्जा ले ले। वो चिट्ठी, वो पैसे लाकर दिया, कहा जिस दिन तू भेजा था अल्लाह कश्ती से पहले तेरी अमानत मेरे तक ये अमानत पहुंचा दी। ये हदीस में कितनी इबरत है मालूम। अगर कोई देने का इरादा करे तो अल्लाह ताला दिलाता, अल्लाह देने का इंतजाम कराता। अगर तुम्हें डुबाने का इरादा करे, तुम ना कान गाड़ना, वहां गाड़ को अल्लाह बिठा डालता। डुबाने की नीयत नहीं रखना। लोग चुन्ना लगाने का काम करते, पक्के
के 420 कामा करती और लोगों को टोपी पहनाने के कामा करती। मालूम नहीं कि बहुत सारे लोग पहले से टोपी पहनने के रहते, उनको फिर बहुत टोपी पहनाने के कामा करते। मामलादारी में हमारे समाज में मस्जिद के इमाम के साथ हमारा रवैया कैसा? मस्जिद का इमाम, मस्जिद के मौलाना, हमारा रवैया कैसा? जत्ते मुसल्ली वत्ते मुतवल्ली। बेचारा मस्जिद का एक इमाम, मस्जिद में कितने मुसल्ले आती कि वत्ते मुतवल्ले दे जी, तुम्हें असर में दिखे ना जी, कौन पूछता सो कौन की मुसल्ली क्या छे? फैन डाले सोगी तुम्हारा बाबा लाइट का बिल भरता क्या? किसे पूछ कर वाले जी तुम्हें? अल्लाह अकबर। कितने मुसल्ली वत्ते मुतवल्ली। वहां जोरू बच्चे कदे मुंह खोलने दम रहता नहीं, मौलाना कदे बम्बड़ा मार लेते रहता। अल्लाह अकबर। मौलाना का तो क्या समझी तुम्हें? मस्जिद का इमाम क्या समझी तुम्हें? कौम का रहबर, नबी का वारिस, वरसतुल अंबिया का सरपरस्त, ऐसे आलिम दीन के साथ हमारा मामला कैसा रहता? इन्हें हमारा नौकर रहने, हमें बोले सर का सुनना इन्हें। और इतना नहीं बल्कि अगर कांतो भी मौलाना मुतवल्ली बोले सर का नहीं सुने जे, अगले महीने से हमारे मस्जिद में नहीं रहना, पहले निकलो, तुम्हें कपड़े चेंज करे सर का, मौलाना को चेंज करता मुतवल्ली। अल्लाह तुझे दुनिया से चेंज कर डालता, अगर मौली की बदुआ लिया तो दुनिया से तुझे निकाल सर डालता, तेरी जगह दूसरे मुतवल्ली के लाख बिठा डालता अल्लाह। और अल्लाह के नबी कहते हैं खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान सीख कर सिखाए। अरे कुरान सिखाने वाला, सीखने वाला बेहतरीन बोल रहा अल्लाह उसे, और तुम्हें उसे बदतरीन निगाह से देखती। हजरते अमर बिन सलमा, छोटे लड़के 9 साल के, उन्होंने कहते हैं मेरा घर ऐसी जगह था जहां सहाबा दीन सीखकर आते जाते, मैं उनसे पूछता था आज नबी क्या सिखाए, आज कुरान की ये आयतें उतरी, हम नबी से सीख कर आए। वो एक बार मेरे सामने पढ़े तो मैं वो आयतों को याद कर लेता था। ऐसा सुन सुन को मैं कई कुरान याद कर लिया। नबी अलैहिस्सलाम आए, देखे इस बस्ती में मुसलमान है, तुम में से वो इमामत करे जो सबसे ज्यादा कुरान याद रखता हो। मैं अभी छोटा बच्चा, मेरे गांव वालों ने नबी के फरमान के मुताबिक मुझे कौम का इमाम बना दिया। मैं इमामत करता था, सजदे में गया तो मेरी सतर खुल जाती थी। औरतों ने अपना दुपट्टा देकर मेरे लिए लूंगी सिलाया और वो पमान की थी, मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई। यह सही बुखारी का वाकया है। मेरे दीन और इस्लामी भाइयों, हमारे समाज में मस्जिद के मुअज्जिन के साथ हमारा मामला कैसा रहना? मस्जिद के मुअज्जिन के साथ भी हमें क्या मिले वो बातें करती, ऐसा वैसा चिल्लाती, मस्जिद के मुअज्जिन को डांटती और बोलती क्या जी अच्छी आवाज नहीं क्या जी तुम्हारी, अभी अच्छी आवाज में आजान दो जी, अभी अच्छी आवाज में। एक जगह ऐसा सताया एक आदमी मुअज्जिन को, उन्हें बोला सैलरी देता 2000 में मोहम्मद रफी की आवाज में तुझे अजान देख देना क्या बा, मैं क्या डायरेक्ट मोहम्मद रफी की आवाज निकालूं क्या मैं अंदर से? मस्जिद के मुअज्जिन का तो क्या समझी हमें? अल्लाह के नबी की हदीस सुनो, अन मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअज्जिनु अतवलुन नास आनाकन यौमल क़ियामा। सही मुस्लिम 380 नंबर की हदीस। कयामत के दिन मुअज्जिन की गर्दन सबसे लंबी रहेगी और जो मुअज्जिन 12 साल तक अजान देगा अल्लाह उसकी गर्दन ऊंची रखेगा, उसे जन्नत अल्लाह नसीब करेगा। नबी के जमाने में एक बूढ़ी औरत थी जो मस्जिद की साफ सफाई किया करती थी। बुखारी की हदीस 37 नंबर की हदीस। रात में उसका इंतकाल हुआ। लोगों ने नबी को बताना मुनासिब नहीं समझा, ले जाकर कब्रिस्तान में दफन कर दिया। नबी ने 1 दिन 2 दिन देखा बूढ़ी नजर नहीं आ रही जो मस्जिद की साफ सफाई करती थी। आपने पूछा वो बूढ़ी औरत कहाँ है? अल्लाह के नबी 2 दिन पहले उसका इंतकाल हुआ, हमें तुम ना रात में डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं समझे, लेकिन जब दफन कर डाल। नबी ने कहा मुझे इत्तला क्यों नहीं दिए, मुझे बताओ
उसका खबर कहाँ है? अल्लाह के नबी, ये उसकी खबर है। नबी उसकी खबर पर जाकर नमाज जनाजा पढ़े। इतनी बड़ी इज्जत है मस्जिद के मुअज्जिन की, प्यारे भाइयों। और अगर आज हम किसी भाई के साथ बिजनेस पार्टनर करते हैं तो लिख लिया करो, बॉन्ड अग्रीमेंट कर लिया करो, फायदा इतना, नुकसान इतना, फायदे में शरीक, नुकसान में शरीक, हर मामले में शरीक, इस तरह लिख कर उनके साथ मामलादारी किया करो। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बाप मर गया, बाप के इंतकाल के बाद लोग प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेकर बैठ जाते हैं, भाइयों के बहनों के प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं देते, तरका माले विरासत पर कब्जा कर लेते हैं। अल्लाह के नबी ने कहा कि जो शख्स किसी का माल तरका खाएगा, माले विरासत खाएगा, उसकी अमानत तो कयामत के दिन कांधे पर लेकर आएगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम जब मदीने को आए, मस्जिद नबवी बनाने के लिए 2 यतीम बच्चों के पास से वो जमीन लिए, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमीन को यतीम बच्चों से मुफ्त में नहीं लिए, पैसे जमा करके बाकायदा उन यतीम बच्चों को पैसे दिए। जब भी किसी के साथ कोई मामला होता है, बाप मर गया, फौरन तरका तकसीम कर लो, ज्यादा दिन मत छोड़ो, वरना बड़े भाया घरों पर, प्रॉपर्टी पर, कारोबार पर कब्जा जमा लेंगे, छोटे भाइयों और बहनों का हिस्सा नहीं देंगे। ये जमाने में चल रहा है। जो बड़ा भाई ऐसा करेगा, जो तरके का माल नाहक खाएगा, अल्लाह के पास अपने पेट पे जहन्नम को भरकर वो अल्लाह को हिसाब देना पड़ेगा। मेरे दीनी और इस्लामी भाइयों, बस मैं इसी पर अपनी बात खत्म करता हूं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूं, अल्लाह ताला मुझे और आपको हमारी जिंदगी के मामलादारी सही मानों में करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।